السلام علیکم، حاضر ہوں اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج ہم پڑھیں گے گروپ 5A اینڈ 6A کی پراپرٹیز۔ تو آئیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو گروپ 5A، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تمام گروپس کا مطالعہ کر چکے۔ گروپ 1A، گروپ 2A جو کہ ایس بلاک میں پائے جاتے ہیں، گروپ 3A اور گروپ 4A جو کہ پی بلاک میں پائے جاتے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے پی بلاک سے جو ایک اور گروپ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے گروپ 5A، جس کا نام ہے نائٹروجن فیملی۔ نائٹروجن فیملی اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ جو اس کا پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے نائٹروجن، اور نائٹروجن کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 7 اور اٹامک ماس ہوتا ہے 14۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے گروپ 5A کو نائٹروجن فیملی کہا جاتا ہے۔ تو اس گروپ میں کتنے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں تو آئیں انہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دس گروپ انکلوڈ نائٹروجن، اوکے، فاسفورس۔ تو نائٹروجن اور فاسفورس کا نام آپ اپنے کلاس 9 میں بہت زیادہ سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دس گروپ انکلوڈ نائٹروجن اینڈ فاسفورس، جس کا سمبل ہے پی۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس آرسینک اینڈ اینٹیمنی۔ آرسینک، اینٹیمنی، آرسینک کا سمبل ہے AS اینڈ اینٹیمنی از SB، اوکے۔ اینڈ جو پانچواں ایلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے وہ ہے بسمتھ، ٹھیک ہے، جس کا سمبل ہے BI۔ یہ ایلیمنٹ شامل ہے۔ ابھی آگے پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ میٹلس ہے کہ نن میٹلس ہیں۔ اچھا ادھر دیکھیں، گروپ 5A ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ جو گروپ نمبر ہوگا اس کے آخری شیل میں، اس کے ویلنس شیل میں اتنے ہی الیکٹران ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ گروپ 1 تھا، اس کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران تھے؟ 1 الیکٹران تھے۔ گروپ 2A کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران تھے؟ 2 الیکٹران تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ ہے گروپ 5A، تو اس کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہوں گے؟ تو اس کے ویلنس شیل میں 5 الیکٹران ہوں گے۔ تو دیئر ویلنس شیل کنٹین 5 الیکٹرانس، اوکے۔ تو نائٹروجن کا آپ اگر ایٹمک اسٹرکچر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا اٹامک نمبر 7 ہے، تو K شیل میں آپ کے پاس 2 الیکٹران آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس L شیل بچے گا، اس میں 5 الیکٹران آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹران پائے جاتے ہیں؟ 5 الیکٹران پائے جاتے ہیں، جس کو ویلنس الیکٹران کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویلنس شیل میں 5 الیکٹران پائے جاتے ہیں، تو اسی الیکٹران کو ویلنس الیکٹران بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو تمام ایلیمنٹس کے آخری شیل میں یعنی ویلنس شیل میں 5 الیکٹران پائے جائیں گے، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اس کے علاوہ دے شو لارج ویریشن ان پراپرٹیز ایز وی گو ڈاؤن دا گروپ۔ جیسے جیسے ہم ڈاؤن دا گروپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے جیسے کیا کرتے ہیں، ڈاؤن دا گروپ جاتے ہیں، تو ان میں جو پراپرٹیز ہے، اس کی جو پراپرٹیز ہے اس میں بڑا ویریشن پایا جاتا ہے، لارج ویریشن پایا جاتا ہے۔ ویریشن کہتے ہیں چینجنگ کو۔ تو جیسے جیسے ڈاؤن دا گروپ جاتے ہیں، نائٹروجن سے فاسفورس، فاسفورس سے آرسینک، آرسینک سے اینٹیمنی، اینٹیمنی سے بسمتھ، تو ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ ویریشن یعنی بہت زیادہ چینجنگ پائی جاتی ہے۔ لیکن کیا چینجنگ پائی جاتی ہے انہیں ہمیں ڈسکس نہیں کرنا، یہ آنے والے ٹاپکس میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اوکے۔ اس کے بعد جو آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ والی پوائنٹ دیکھ لیں، نائٹروجن اینڈ فاسفورس آر نن میٹلس، ٹھیک ہے نا۔ نائٹروجن اور فاسفورس آپ کے پاس کیا ہے؟ نن میٹل ہے، اوکے۔ اس کے بعد آپ کے پاس AS یعنی آرسینک اور SB یعنی بسمتھ، ٹھیک ہے نا۔ آرسینک اینڈ بسمتھ آر میٹالوئڈس۔ میٹالوئڈس کیا ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ میٹل اور نن میٹل کے انٹرمیڈیٹ یعنی اس کے درمیان کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں میٹالوئڈس، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض اوقات یہ میٹل کی طرح بیہیو بھی کریں گے، بعض اوقات نن میٹلس کی طرح بھی بیہیو کریں گے، تو کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اوکے۔ تو اینٹیمنی اینڈ آرسینک اور اینٹیمنی آر میٹالوئڈس۔ اس کے علاوہ بسمتھ از میٹل۔ بسمتھ کیا ہے بیٹا؟ آپ کے پاس میٹل ہے۔ یہ چند عام سی باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس پوائنٹ پہ ذرا فوکس کرتے ہیں، ایلیٹروپک فارم۔ ایلیٹروپک فارم کیا ہوتی ہے؟ لکھا ہوا ایکسیپٹ نائٹروجن، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایلیٹروپک فارم کی جو بارے میں جو بات ہوئی ہے، یہ آپ کے پاس گروپ 4A میں آنی چاہیے تھی، جو کہ گروپ 4A میں آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ ایلیٹروپک فارم کے بارے میں گروپ 4A میں آنی چاہیے، لیکن اس کو ڈسکس کیا ہے گروپ 5 میں، جو کہ بہت بڑی غلطی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اس کو بھی بتاتے ہیں آپ کو ایلیٹروپک کیا ہوتی ہے۔ ذرا پہلے اس کو دیکھیں، ایکسیپٹ نائٹروجن، سوائے نائٹروجن کے، آل ایٹمس، آل ایلیمنٹس، آل ایٹمس ایگزسٹ ان ایلیٹروپک فارم۔ ایلیٹروپک فارم کیا ہوتا ہے بیٹا؟ مالیکولر، ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ مالیکولر فارمس آف سیم ایلیمنٹ، ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ مالیکولر فارم آف سیم ایلیمنٹ یا این ایلیمنٹ۔ یعنی ایک ایلیمنٹ ہے، مثال کے طور پہ میں اس کو مثال آپ کو دوں گا گروپ 4A سے، ٹھیک ہے نا۔ گروپ 4A میں موجود ہوتا ہے بیٹا کاربن،
ग्रुप 4A में मौजूद है आपके पास कार्बन। ठीक है, आप कभी भी आगे जाएंगे तो एलोट्रॉपिक फॉर्म जब भी पढ़ेंगे तो आपको कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ाई जाएगी सबसे पहले। ठीक है ना, हमने भी आज तक कार्बन की ही एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ी, किसी और एलिमेंट्स की बहुत कम पढ़ी। सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ी और कार्बन की पढ़ी है, लेकिन यानी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म हमने भी नहीं पढ़ी अब तक। तो लिखा हुआ डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये एन एलिमेंट लिख देते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। मिसाल के तौर पर एक कार्बन एटम है, ठीक है ना, तो एक ही कार्बन एटम को मिलाकर डिफरेंट फॉर्म्स यानी डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ये बनाए नहीं जाते, ये नेचुरली मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर आप एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन समझते हैं, क्या एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की भी क्या है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की भी क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। इस बात को क्लियर करते हैं, कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है पहली हमारे पास है वो है डायमंड, क्या है डायमंड, और दूसरी जो फॉर्म है हमारे पास है वो ग्रेफाइट है। तीसरी भी फॉर्म है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो 2 है, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। डायमंड जो है ये किससे मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है, और ग्रेफाइट जो है ये किससे मिलकर बना है, ये भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। दोनों जो है सेम एलिमेंट से मिलकर बने हुए, ठीक है ना। लेकिन डायमंड को आप देखेंगे किस तरीके से ये क्या करता है, लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आ रही बात। अब उसी तरह ग्रेफाइट ये कहाँ मौजूद होता है, आपके पेंसिल की नोक पर मौजूद होता है। दोनों कार्बन से ही मिलके बने हुए, लेकिन इन दोनों की फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट है। इन दोनों की फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट है। तो डायमंड और कार्बन, डायमंड और जो ग्रेफाइट है ये दोनों क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है इसको ग्रुप 4A में डिस्कस करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया, जो कि डिस्कस किया गया नाइट्रोजन फैमिली में, जो कि एक बहुत बड़ी गलती भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म। फास्फोरस भी एलोट्रॉपिक में पाया जाता है, लेकिन आपको उसको जानने की ज़रूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन के जान लें, कार्बन के, ठीक है ना। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म पाई जाती है, यानी सेम एलिमेंट से मिलकर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स अवेलेबल है। ठीक है ना, यानी फास्फोरस को मिलाकर, फास्फोरस से ही डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स अवेलेबल है फास्फोरस की। तो यहाँ से कार्बन की बताते हैं, तो कार्बन को मिलाकर डायमंड भी मौजूद है, और कार्बन के साथ हमारे पास ग्रेफाइट भी मौजूद है। लेकिन दोनों की जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो डिफरेंट है। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अंदर जो केमिकल एलिमेंट है वो सेम है, लेकिन जो अंदर केमिकल एलिमेंट है वो है सेम, जो कि है कार्बन। इसको ग्रुप 6 से भी डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म के लिखा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स है डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रुप 6 है जिसका नाम ऑक्सीजन फैमिली क्यों है, क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है वो आपके पास ऑक्सीजन है। ओके, तो इस ऑक्सीजन, इसको हम देख लेते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड ऑक्सीजन, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, दूसरा एलिमेंट सल्फर। इन दोनों का नाम आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे हर जगह, इनका इस्तेमाल आपके पास आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन नाम आपको तो देखना पड़ेगा, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम का नाम आप ज़रूर सुनेंगे। तो ऑक्सीजन जो हम इस्तेमाल भी करते हैं सांस लेने के लिए, सल्फ़र आपने अक्सर देखा होगा, गंधक, ठीक है ना, येलोश कलर का होता है। तो ऑक्सीजन का साइन जो सिंबल है ओ, सल्फ़र का एस, सेलेनियम का एस। इसको याद करने के भी आपको तरीका बता देंगे। टेलेरियम के लिए टी है और पोलोनियम के लिए आपके पास क्या है, PO। ओके, अच्छा ग्रुप 6 से है तो इसके आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। वैलेंस शेल क्या होता है बखूबी जानते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन का देखिए एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। ऑक्सीजन के K शेल में आ जाएगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और L शेल में आपके पास आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। L शेल सेकंड शेल होता है आप जानते हैं। तो तमाम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि ये अपने आखिरी शेल को मुकम्मल कर सकें, अपने आखिरी शेल को क्या कर सकें, मुकम्मल कर सकें। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, लूज़ नहीं करते हैं। जबकि ग्रुप 1 या 2 वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ग्रुप 6 से। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नन मेटल। ऑक्सीजन और सल्फर क्या है आपके पास, नन मेटल्स। सेलेनियम, टेलेरियम आपके पास क्या है, मेटलॉइड्स। मेटल एंड नन मेटल के बीच का
बीच के कैरेक्टर, एंड पोलोनियम इज मेटल, एंड पोलोनियम इज मेटल। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे पास ऑल ऑफ दिस एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एलोट्रॉपिक फॉर्म पाई जाती है, यानी सेम एलिमेंट के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स मौजूद हैं, सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स मौजूद हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते ज़रा देखते हैं, पहले ऑक्सीजन के देखते हैं। तो ऑक्सीजन की क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म, जैसे ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो आपने ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है O2, और इसके अलावा एक और भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म O3, जिसका नाम आपके पास क्या है ओजोन, और इस O2 का नाम क्या है आपके पास ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये सेम एलिमेंट से मिलकर ये O2 बना है, और सेम एलिमेंट से मिलकर ये क्या बना O3 बना है। ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो इसी को क्या कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और ये मौजूद है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है ना, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ क्या आपके पास ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन को ही डिस्कस करेंगे। सल्फर की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म पाई जाती है, लेकिन इसे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपके मैट्रिक में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसका नाम होता है रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ट्राइक्लिनिक सल्फर। तो और भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनकी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म पाई जाती है, लेकिन हमें इसे डिस्कस नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी क्या थी चंद प्रॉपर्टीज़ थी। अच्छा, तो देख ले ग्रुप 5 को आप किस तरीके से इसके नाम को आप याद कर सकते हैं, नाम को देख लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से होगा, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। तो आपको कैसे करना है ज़रा देख लें। नाइट्रोजन शुरू हो रहा है N से, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यानी इधर देखें N से नाइट्रोजन, P से प्रॉब्लम यानी फास्फोरस हो गया, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो आर्सेनिक का जो सैम्पल आपके पास AS है, तो इसमें आप लिख लें नो प्रॉब्लम असलम। ठीक है, एंटीमनी का सैम्पल है SB, नो प्रॉब्लम असलम साहब। ठीक है ना, साहब को हटा के आप डायरेक्ट SB लिख, नो प्रॉब्लम असलम साहब। ठीक है, नो प्रॉब्लम असलम साहब। इसके बाद BI के लिए आप कुछ भी लिख लें, भाई लिख लें, या ठीक है ना भाई लिख लें, कुछ भी लिख लें, भाई लिख लें, नो प्रॉब्लम असलम साहब भाई, या कुछ और लिख लें, इसमें कोई मसले की बात आपको नहीं है। तो नो प्रॉब्लम असलम साहब बाई, इस तरीके से आप बाई ये वाला कुछ भी आप जो भी इसमें लगा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो नो प्रॉब्लम असलम साहब बाई। ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम असलम बाई साहब, नो प्रॉब्लम असलम बाई साहब। तो ऐसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS यानी आर्सेनिक, SB यानी एंटीमनी, बाई यानी बिस्मुथ। ठीक है, अब इसके बाद आगे हमारे ग्रुप 6 है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे O है। ठीक है, इसको किस तरीके से करें आप, ठीक है ना, इसको इस तरीके से करेंगे O। ठीक है, O हो गया, इधर लिखा हुआ O सस्सी, O सस्सी। ठीक है ना, इससे पहले O सस्सी, O सस्सी। सस्सी नाम होता है, सस्सी क्या होता है नाम होता है किसी डिफरेंट लैंग्वेज में। ठीक है ना, O सस्सी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ TEPO, O सस्सी टीपू। ठीक है ना, O सस्सी टीपू। तो देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको उर्दू में लिख दिया जाए इस तरीके से, देखें O सस्सी टीपू भी नाम होता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा, ये सुल्तान टीपू। O सस्सी टीपू, O से ऑक्सीजन, सस्सी यानी आप देख सकते हैं सल्फ़र और सिलीनियम, सल्फ़र और सिलीनियम के लिए सस्सी इस्तेमाल किया गया, टीपू टेलेरियम, और PO आ गया टीपू यानी पोलोनियम। तो इस तरीके से आप क्या ग्रुप 5 और 6A के नाम को भी याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।